Okay. An adult human contains an estimated 100 trillion cells, and yet we start life as a single cell. To grow, develop, and repair tissue damage, we rely on cell division. In eukaryotic cells, this process is accomplished by a series of well-orchestrated steps called mitosis. Every day our bodies must produce millions of skin cells to replace those lost through normal activity. Each of these cells must have a complete complement of the genetic material. Prior to cell division, where the cell divides into two identical cells, the DNA needs to be replicated so that each daughter cell receives an exact copy. Following DNA replication, the chromosomes condense in the nucleus of the cell. DNA condenses by wrapping around cores of histone proteins, forming nucleosomes. This beads-on-a-string structure is called chromatin. As a cell prepares to divide, chromatin coils up further, shortening and condensing the chromosome. The replicated chromosomes are called sister chromatids. The replication of DNA and the formation of sister chromatids is one part of the entire cell cycle. To prepare for cell division, the cell goes through interphase, which can be divided into three distinct phases. During G1 or Gap1 phase, all the organelles and cytoplasmic components, including the centrioles in animal cells, replicate. Then during S or synthesis phase, the DNA replicates. Finally, during G2 or Gap2 phase, all the enzymes needed to aid in the process of cell division are produced. Most eukaryotic cells spend a great deal of time in interphase, and a very short period of time actually dividing, a process called mitosis. The cell is now ready to go through mitosis, which consists of prophase, metaphase, anaphase, and telophase. During prophase, the chromosomes condense and become visible, appearing as two sister chromatids held together at the centromere. The cytoskeleton disassembles as the spindle begins to form. In animal cells, centrioles play an important role in the distribution of the chromosomes in the dividing cell. The centrioles migrate to opposite poles, establishing a bridge of microtubules called the spindle apparatus, and the nuclear envelope breaks down. Towards the end of prophase, chromosomes attach, by proteins in their centromeres called kinetochores, to microtubules from each pole, moving the chromosomes toward the equator of the cell. During metaphase, all chromosomes are aligned at the equator of the cell, called the metaphase plate. Anaphase begins with the degradation of proteins that hold sister chromatids together, freeing individual chromosomes. The free chromosomes are then pulled by their kinetochores to opposite poles. At telophase, a cleavage furrow forms in the center of the cell. This indentation is made from a constricting belt of actin filaments surrounding the inside of the cell's circumference. Chromosomes cluster at opposite poles and begin decondensing as the nuclear envelope reforms around them. The spindle apparatus disassembles as the microtubules are broken down into tubulin monomers that can be used to form the cytoskeleton of the daughter cells. In animal cells, cytokinesis completes cell division by extending the cleavage furrow to completely separate the newly formed daughter cells. Since plant cell walls cannot be constricted by actin fibers, vesicles form an expanding membrane partition called the cell plate. Like animal cells, plant cells use cytokinesis to finish the division of the contents of the cytoplasm between the two identical daughter cells. During the cell cycle, certain checkpoints are encountered to make sure the process is occurring accurately. And if it is not, the cell cycle will stop at the checkpoint and correct, or possibly inhibit that cell from dividing. The first checkpoint is the G1s Checkpoint, and is considered the primary point at which the cell cycle continues or stops. External signals and growth factors can influence the cell cycle and affect the progress at or before this critical checkpoint.
The G2m checkpoint allows cells that have successfully completed all 3 phases of interphase to begin mitosis. The last checkpoint is the spindle checkpoint, ensuring that all chromosomes have attached to the spindle in preparation for anaphase. Growth factors, the size of the cell, and the nutritional state of the cell are all contributing factors in cell cycle regulation, ensuring that only certain cells divide at appropriate times. Once all the checkpoints in interphase are cleared, mitosis can occur. From interphase to cytokinesis, the entire process of cell division can take on average 10 to 20 hours in a typical plant or animal cell. Depending on the nature and use of the cell, the process can happen at different frequencies as well. In humans, our skin cells have a high turnover rate due to wear and tear and go through mitosis very frequently, whereas other cells, such as adult neurons and muscle cells, rarely divide. The accuracy of mitosis, as well as the consistency of the checkpoints during interphase, ensure that most cells in a eukaryotic organism can produce identical copies of themselves. This process allows for growth and repair to prolong overall physiology as well as life itself. The questions? ठीक है, I've already mailed these to you also. Questions भी हैं, marking scheme भी है, तो हम discuss कर लें, फिर then you can have a look at those questions also. All right. So this is question number 1. So they have given us a diagram of a chromosome, okay, from a dividing cell. So okay, they have shown you one chromosome, single chromosome. So they're saying a dividing cell is at risk of losing genetic material each time the DNA replication occurs. ठीक है, अब जब DNA replication होती है बेटा, तो this is what we are expecting कि exact same copy replicate होगी और identical हमें DNA मिलेगा, ठीक है? But mutations can happen at that time also, ठीक है? So they are saying it is a risk of losing the genetic material each time the DNA replication occurs, ठीक है? So this figure is actually showing you a one chromosome. So they are saying you add a label line and then you mark it with letter G to show the location of the chromosome of an area that helps to prevent the loss of genes. So do you have any idea बेटे कि वो क्या चीज होती है basically chromosome में that prevents that? Ma'am, telomeres. बिल्कुल, good. So Telomeres. हाँ, उसका function है telomeres. End पे. हाँ, तो बिल्कुल these. So you can mark any of these. तो ठीक है, mark करना है उसको letter G से आपको. These are like, ma'am, वो extra bases. These are like the extra parts of DNA that don't have anything to code for, and they're just for like preventing कि main material ना ज़ाया हो in replication. ठीक है, so they are there, but वहाँ पे ये होता है कि वो continuously growth होती रहती है, replication होती रहती है, तो stop नहीं होता. Enzyme is telomerase बेटे. ये telomerase enzyme is actually codes for these telomeres. So you are correctly, you're right. They don't have any role there, but they simply prevent this loss of DNA. But good, ठीक है, one mark. All right. Okay, then next part है बेटे. The chromosomes shown in the same figure consists of one long DNA molecule associated with histone proteins. Name one stage of mitosis in which chromosome would have the same genetic structure as the chromosome. So think about the stages of mitosis, or they're saying name one stage where it looks exactly the same. Ma'am, I don't get like यहाँ पे हो क्या रहा है? ये अच्छा ये the first वाला है. This is the first one. Prophase. ठीक है, prophase में तो you know कि DNA मतलब DNA replication तो interphase में हो गई, but prophase के अंदर फिर क्या होगा बेटे? क्योंकि जब replication होगी तो don't you think कि बेटे sister chromatids हो जाएंगे, यहाँ पे centromere आ जाएगा और you will have another strand there. Exactly. ठीक है. So ma'am, prophase में तो होता ही ये था कि kind of पहला strand जो है वो condense होता था. Like first of all, loosely threads से condense होके ये बनते थे. और उसके बाद फिर metaphase में शायद कुछ ऐसा होता था कि replication they align. Prophase में simply क्या होता है बेटे, देखो interphase है because जो DNA replication हो रही है it is taking place in interphase. तो interphase के अंदर you actually have this. ये जो चीज बनती है ना interphase में बन जाती है because this if you look at this part here बेटे, this is one whole strand. If you look at one chromatid, a chromatid is actually one DNA molecule. ठीक है, ये एक chromatid है और ये दूसरा सिस्टर के साथ chromatid है.
ठीक है, so it means कि एक क्रोमोसोम में when we talking about duplicated chromosome बेटे, it has 2 DNA molecules. ठीक है, एक क्रोमेटिड में एक The DNA same molecule. ones replicate. बिल्कुल, ठीक है, रेप्लिकेटेड वर्जन है. ठीक है, तो प्रोफेज के अंदर और इंटरफेज में ये ऑलरेडी हो चुका है. प्रोफेज में इट इज इन द सेम कंडीशन. अब जो हमें डायग्राम क्वेश्चन में दिखाई है, दे हैव ओनली शोन यू वन स्ट्रैंड देयर, एक क्रोमेटिड दिखाया है. So they are asking you to think of any other phase of mitosis in which we will have the same condition with it. हमें वही एक ही क्रोमोसोम. मैम लास्ट वाला फेज में होगा. So last का नाम क्या है? PMAT, तो telophase. अच्छा, is it just telophase? Think about it. Metaphase में lines हैं. Then there is one more anaphase भी होती है. So do you think उस वक्त तक separation होती है? ठीक है, इट कुड बी बोथ ऑफ दीस. एनाफेज भी हो सकती है और टीलोफेज भी हो सकती है. ठीक है, अगर अगेन उसको जस्ट एक डायग्राम तुम देख लो, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए. सो एनाफेज में देखो, एनाफेज में आल्सो बट यू हैव दिस सिंगल स्ट्रैंड देयर, सो कुड बी एनी ऑफ दीस टू. ऑलराइट. ठीक है, अब ये क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन था, तो हम इसमें से कोई भी दो आंसर, एक आंसर लिख सकते हैं. सो ठीक है, इनफैक्ट फिर भी इट्स गुड दैट वी कीप ऑन हैविंग अ लुक एट द आंसर की. ठीक है, सो फर्स्ट वन हमने लेबल कर लिया था. सेकंड बेटा 1 मार्क है, सो कुड बी एनी ऑफ दीस टू, एनाफेज या टीलोफेज, जो भी लिखोगे इट विल मार्क करेक्ट. ऑलराइट मैम. ओके, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन. Then they are saying name the stage in the mitotic cell cycle during which the cytoplasm and the cell divide to produce 2 genetically identical daughter cells. ये तो हम cytokinesis है. Exactly. So one word answer has to be there. So it's cytokinesis. Good. Then they're saying the control of cell cycle can be affected by extracellular chemical messengers that bind to proteins and glycoproteins in the cell surface membrane. Overall mechanism is known as cell signaling. State the term used to describe the proteins and glycoproteins that function in this way. So chapter 1 में हमने पढ़ा था बेटे. Glycoproteins तो लिख दिए. Like I don't get it. What do we call these structures? They are present on the cell. They are involved in cell signaling. तो हम इनको कहते क्या है? Let's say there is a chemical or hormone receptors. ठीक है? कोई chemical or hormone cannot get inside the cell, so it needs a receptor. ठीक है? So इन चीजों को हम receptors बोलते हैं. So one word answer है 1 mark का. ठीक है? So it's receptor. Okay. So this was of 4 marks. Okay. Well done here. Let's go look at this one. Okay. So this is a drawing of chromosome 1 from rice. ठीक है? And they have like they're telling it is during the metaphase of the mitosis. Metaphase का मतलब it has been aligned. ठीक है? At the equator. So first they are saying state the name and function of the region labeled X. What could be this region बेटे? उसका नाम और उसका function. 2 marks. मैम ये वो इसे क्या कहते हैं? बीच वाला पार्ट जो दोनों कनेक्ट कर रहा है. सेंट्रोमियर या सेंट्रोमियर बिल्कुल. ठीक है. So 1 mark for the name और function इसका फिर कैसे लिखोगे? You just said that, but इसको एक proper statement में कैसे लिखोगे? It connects both part of the chromosome. हाँ, but chromatids का term use करना. ठीक है, specify करना. Parts में लिखोगे chromatids. ठीक है. So it holds or joins sister chromatids. So again underline क्या है बेटे? They're looking for this. ठीक है. और इसका दूसरा काम ये भी होता है, ये attach कर सकते हैं. जी बेटे? या एक दफा जरा डायग्राम पे जा सकती हैं? हाँ. ये like chromatids, sister chromatids है कौन से? Are they gonna cut like perpendicularly? X axis पे कटेंगे या Y axis पे? ये अब ये डिपेंड करता है बेटा. एक्स ये आपका क्रोमेटिड है, ये एक क्रोमेटिड है. रेप्लिकेशन के बाद दिस इज द अदर क्रोमेटिड. सिस्टर क्रोमेटिड्स आर एक्चुअली जॉइंट बाय सेंट्रोमियर. हम इसीलिए इनको सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं. ऊपर वाला पार्ट क्या है? बोथ ऑफ देम आर क्रोमेटिड्स. इसीलिए तो सिस्टर क्रोमेटिड्स बोल रहे हैं. ये भी क्रोमेटिड है और ये भी क्रोमेटिड है. Both of them are joined by centromere. We call them sister chromatids. Can you just like circle one full chromatid? अच्छा, एक पूरा chromatid को circle. ठीक है, मैं आपको एक different color से दिखा देती हूँ. Let's use this one. This one बेटे. This whole is one chromatid. This. Okay, it makes sense now. Yeah, that's what I was wondering कि ये पूरा है या फिर like सिर्फ वो जो लेफ्ट साइड वाले हैं वो पूरा एक क्रोमेटिड बन. नहीं, ये पूरा लेंथ में. ठीक है.
या you were saying along the x-axis में भी है ना, तो this one hole is one that's chromatid, ठीक है, ये दूसरा है, and both are joined by this centromere, तो यही function है centromere. all right, ma'am. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा एक और function centromere का ये भी बेटा, it actually attaches these chromosomes to the spindle, so join भी कराता Yeah, है exactly. इसको भी spindle में भी. तो again क्योंकि one mark है तो you can write any of these. Okay, let's look at the next one. Up here they have shown you outline of the cell below. Draw the chromosome from the same figure. अब इसमें बेटा हमें बहुत ज़्यादा specific होना पड़ता है. They're saying draw the chromosome from figure 6.2 और figure 6.2 is exactly this बेटे. तो हमें इसी को as a reference point use करना है. So let me erase this ताकि एक clearly हम चीज़ों को draw कर लें. So we have to use this as it would appear in anaphase of mitosis. So again यहाँ centrosomes already आपको बता दी हैं. तो what do you think बेटा, इसको क्या करना चाहिए? मैम मतलब अभी भी मैं वीक हूँ उस चीज में, लेकिन I'm gonna say कि दोनों सेपरेट हो चुके हैं और ऑपोजिट एंड्स पे जा चुके हैं. बिल्कुल. तो ठीक है, तो बट डेफिनेटली लेकिन अभी तक न्यूक्लियस नहीं फॉर्म हुआ. बिल्कुल ठीक है, चलो स्पिंडल होगा यहाँ पे. सो थिंक अबाउट इट, रिमेंबर बेटा वी हैव टू यूज द सेम क्रोमोसोम. और यहाँ पर आपके पास अभी ये सेम, ठीक है, ये 2 क्रोमेटिड्स हैं अभी. सो थिंक अबाउट इट, एनाफेज में क्या होना चाहिए? सेपरेशन होगी इन दोनों की? सेपरेशन हो चुकी होगी. और ये ऑपोजिट एंड्स पे जा रहे हैं. बिल्कुल. और उसके अंदर भी ऑपोजिट एंड पे भी जब हम शो करते हैं बेटे, तो सेंट्रोमेयर्स आपको पहले ड्रॉ करने, या चलो हम लेट्स से मैं यहाँ मिडिल वाले में ड्रॉ कर देती हूँ, बिकॉज सेंट्रोमेयर्स आर पुल्ड फर्स्ट. ठीक है, और देन लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर फॉर द, ठीक है. और आपके जो बाकी, क्योंकि अगेन बेटा वो सिस्टर क्रोमेटिड्स है, सिस्टर क्रोमेटिड्स एक्चुअली सेपरेट हो गए. तो एक आपने बेशक ऐसे दिखा दिया और दूसरा आपने ऐसे दिखा दिया. ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू शो. अच्छा, एक और चीज का ख्याल ये भी रखना है बेटा, तो लुक एट द लेंथ. ये ठीक है, ये जो कहलाते हैं ना, दीज आर नोन एज द आर्म्स. ठीक है, अभी हम क्योंकि अभी हम ए लेवल पे इतना डिटेल में नहीं करते, वी हैव 2 टाइप्स, एक पी होता है और एक क्यू होता है. ठीक है, बट इसकी लेंथ का बहुत ख्याल करना पड़ता है. अब इसमें देखो, एक की लेंथ ये ज्यादा लंबा है और ये शॉर्ट है, तो व्हाइल यू विल बी ड्राइंग इट ना, तो इस चीज का भी ख्याल रखना. ठीक है, सो लेट्स से चलो एक लंबा और एक शॉर्ट. हाँ बिल्कुल, कि जब आप ड्रॉ कर रहे हो तो बिकॉज दिस इज व्हाट दे आर नोटिसिंग, कि जब आप ऑब्जर्व करो तो ऑब्जर्व आप कितना बेहतर तरीके से कर रहे हो चीजों. ठीक है, सो दिस इज व्हाट दे विल बी लुकिंग. ठीक है, अगेन अब लेट्स लुक एट द मार्किंग, कि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था. सो ठीक है, सो अब दे आर सेइंग मैक्सिमम मार्क्स सिर्फ हमें 1 कब देना है, मोर देन 1 क्रोमोसोम शोन. तो रिमेंबर बेटा, हमें रेफर करना है टू द पिक्चर वाज क्लियरली मेंशन इन द पेपर. तो अगर हो सकता है वो बच्चे गलती से 2 बना दें, तो उस केस में ठीक है, बेशक सबको सही बनाए मगर फुल का मैक्सिमम मार्क्स नहीं मिलेंगे. ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन बहुत गौर से रीड करना है. एंड देन दे आर सेइंग 2 मार्क्स इन चीजों में से सेपरेट क्रोमेटिड्स दैट आर आइडेंटिकल इन शेप, one arm larger than the other, so they will be looking at these points. And then with a V-shaped chromatid with centromere pointing towards the poles. So इनमें से कोई से भी, it has to be V-shape. ये बेटे तो V-shape होना जरूरी है. V-shape मतलब like इस तरह का shape ना, because centromere is actually, we are showing centromere is moving first and then this, so sort of एक shape ऐसी बन जाती है. Now it is pointing towards the pole. तो हमने तो उल्टा बना दिया, away from the pole बना दिया. हाँ बना दिया हमने. हमारे ये दोनों हमारे जो दोनों वो हैं क्रोमेटिड्स हैं, वो दोनों pointing towards each other हैं instead of pointing towards the pole. नहीं, सेंट्रोमेयर बेटे, सेंट्रोमेयर की बात करें, सेंट्रोमेयर यहाँ पर जाएगा. Oh, okay. सेंट्रोमेयर फुल होता है ना पहले. चलो कोई बात नहीं, हम डायग्राम दोबारा एक दफा आप देख लो, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है. इनफैक्ट मैं तुम्हें टीलोफेज की दिखाऊं ना, या एक मिनट, लेट मी, नहीं तो साइटोकिनेसिस है. टीलोफेज में नहीं, एनाफेज की देखनी बेसिकली. तो एनाफेज में बेटा ये है ना, सेंट्रोमेयर्स गो फर्स्ट एंड देन दिस हैपेंस. ओके, नेक्स्ट आ गया आपका, चलो एक ये क्वेश्चन हो गया. देन लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन. अच्छा, अब ये नेक्स्ट अदर क्वेश्चन है बेटे. नेम द स्टेज ऑफ माइटोटिक सेल साइकिल इन विच ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस टेक्स प्लेस. सो सबसे पहले बेटा, क्रोमोसोम बिकम विजिबल as 2 chromatids. What is that stage called? ये तो मैं फर्स्ट बोला. अच्छा, mitotic cell cycle है ना, तो ये prophase. हाँ, अच्छा खैर, ये जो साइकिल्स हैं इनकी फेजेस तो बेटा नेम सेम ही होता है, इवन फॉर मेयोसिस भी. ठीक है, बट सिंपली प्रोफेज. ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में हो रहा है मैम? PMAT, prophase, metaphase.
डीएनए रेप्लिकेशन मैम, ये तो लाइक ये सेल साइकिल की बात है या माइटोसिस की? सेल साइकिल में माइटोसिस तो एक पार्ट है ना, न्यूक्लियर डिवीजन है। डीएनए रेप्लिकेशन सेल साइकिल में है, क्योंकि सेल साइकिल एक्चुअली हैज 3 फेजेस। सेल साइकिल हाँ में वही एक माइटोसिस, इंटरफेज और इंटरफेज। साइटोकाइनेसिस। और इन देखो हाँ, इंटरफेज में बेसिकली एस फेज होता है, उसके अंदर डीएनए सिंथेसिस हो रही होती है। ठीक है, हमारा जो अराउंड समझो हमारे सेल साइकिल के अंदर बेटे अराउंड 80 to 90% जो है ना सेल इंटरफेज में रहता है, 80 to 90%। ओके, ठीक है, माइटोसिस, ठीक है, अराउंड 10% माइटोसिस होते हैं, अराउंड 10% ही साइटोकिनेसिस हो रहा होता है। ठीक है, तो इससे भी ऑलराइट, रिलेटेड आई कैन गिव यू सम क्वेश्चन। सो मोस्ट ऑफ द टाइम बेटा सेल इंटरफेज में ही रहता है। ठीक है, सो इंटरफेज में एस फेज है, वेयर डीएनए सिंथेसिस इज टेकिंग प्लेस। जो डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है वो एस फेज के अंदर हो रही है। वो एस फेज में हो रही है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। Okay, so let's go back to the question then. So DNA replicates बेटे। अब आप यहाँ बेशक मतलब इंटरफेस, ठीक है, और स्पेसिफाई कर दो तो बेस्ट है कि साथ पर आप ये लिखो कि इंटरफेस है पर उसकी एस फेज है, क्योंकि इंटरफेस में 3 फेजेस होती है, G1, S और G2। ठीक है, सो अगेन अब यहाँ पे ऐसे उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया, इंटरफेस को भी देर एक्सेप्टिंग द आंसर। ठीक है, देन न्यूक्लियर एनवेलप रीफॉर्म्स। ये तो मैम उसका ये न्यूक्लियर एनवेलप है ना, तो ये माइटोसिस का भी, क्योंकि माइटोसिस इज न्यूक्लियर डिवीजन, साइटोकाइनेसिस इज लाइक सेल्यूलर सेपरेशन। हम रीफॉर्मेशन की बात करें, क्योंकि प्रोफेज के अंदर तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीजेनरेट हो जाती है। तो मैम टीलोफेज, टीलोफेज में ओके, एनएच टीलोफेज। ठीक है, अब अगेन देखो, अब इग्नोर साइटोकिनेसिस, बिकॉज़ साइटोकिनेसिस के अंदर बेसिकली साइटोप्लाज्म सेपरेट होकर फिर सेल सेपरेट हो रहा होता है। यहाँ पे सिंपली वो तुमसे पूछे सेल रिफॉर्म हो रहा है। हाँ, न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, तो वन वर्ड आंसर हमें देना है। Okay, that during mitosis, chromosomes line up at the equator of the cell. Describe what happens to the chromosomes after this. So पहले तो ये decide करो बेटा, equator में जब वो line up हो रहे हैं तो what is that stage called from PMAT? कौन सी stage के अंदर? Wait, equator पे line up हो रहा है, so it's gonna be anaphase. Think again. अच्छा, इसको याद करने का बहुत आसान तरीका देखो, प्रोफेज में ना याद रखना, हम बात बोलते हैं ना कि क्रोमोसोम्स दे बिकम कंडेंस, दे बिकम थिक, तो प्रोफेज पी इसको याद रखो प्रोमिनेंट से। ठीक है, सेम लेटर। मेटाफेज को याद रखो बेटा मिडिल से। तो हम मिडिल का टर्म यूज नहीं करेंगे, बट एक्चुअली बेटा दिस इज द टाइम व्हेन दे अलाइन देमसेल्व्स एट द इक्वेटर। ठीक है, तो मेटाफेज को मिडिल से याद रखो। एनाफेज को याद रखो अवे। सो दिस इज द टाइम बेटा दे आर पुल्ड अपार्ट, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। और टीलोफेज को याद रखो 2 से, बिकॉज दिस इज द टाइम बेटा जब जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म होकर इवेंचुअली क्लीवेज फरो बनना शुरू हो जाता है, सेल 2 में डिवाइड होना शुरू हो जाता है, साइटोकाइनेसिस में वो चीज कंप्लीट होती है। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस, इसको याद करने के लिए। हाँ, so like मैम, तो prominent का क्या मतलब क्या? Like this is the most prominent stage जिसमें condense हो क्या है? जनरली क्या होता है, ये हमारे पास अगर न्यूक्लियस है बेटा, तो शुरू में इंटरफेज में क्रोमेटिन जो होता है ना बेटा, लूजली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स में इस तरह होता है, दैट इज क्रोमेटिन। ठीक है, इंटरफेज में डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगी, बट प्रोफेज में क्या होता है बेटा, दीज, क्योंकि जो हमारा क्रोमेटिन है बेटा इनिशियली इट इज वेरी लूजली कॉइल्ड, प्रोफेज के टाइम पे वी से इट बिकम्स वेरी प्रोमिनेंट, इट थिकन्स। तो क्या होता है, ये जो कॉइलिंग है ना बेटा, इट इंक्रीजेस सो मच, हम इसका एक टर्म यूज करते हैं, बिकम सुपर कॉइल्ड। ठीक है, इसकी वजह से बिकम्स कंडेंस्ड एंड थिक, सो वी आर एबल टू सी इट। वो प्रोमिनेंस इसी वजह से होती है। ठीक है, okay, now coming back to the question, they said during mitosis chromosomes line up at the equator. Describe what happens to the chromosome after this until the nuclear envelope reforms. So अभी सिर्फ लाइनिंग अप हुई है, तो अब आपको कुछ चीजें मेटाफेज की भी बतानी पड़ेंगी। तो इसमें कुछ सेंट्रोमेयर का जिक्र करोगे, और उसके बाद मेटाफेज के बाद बेटा एनाफेज एंड देन टीलोफेज। तो इन तीनों स्टेजेस का आपको जिक्र करना है, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स। सो अब जरा 4 valid points. बिल्कुल, सो थिंक अबाउट इट कि क्या हम आंसर कैसे फ्रेम करेंगे अब इसमें। Chromosomes, okay, wait, describe what happens to chromosome after this until the nuclear envelope. Like metaphase का point का तो कोई point like mark होगा भी नहीं, because उन्होंने already mention कर दिया कि वो लाइन अप हो चुके हैं। अगर लाइन अप हो गए तो वहां तुम सेंट्रोमेयर का बिल्कुल जिक्र कर सकते हो। सेंट्रोमेयर का तो रोल है ना, लाइन अप करने के बाद सेंट्रोमेयर क्या करते हैं?
centromeres attached to the spindle fiber. बिल्कुल, ये पॉइंट बिल्कुल लिख सकते हो. फिर then talk about Okay, so anaphase में फिर क्या होगा? the anaphase the opposite ends पे जो वो होते हैं spindles होते हैं, नहीं spindles नहीं, जो दो चीजें होती हैं, they start pulling the chromatids apart. फाइबर से वही पुल करते हैं बेटा, they contract. Yeah. ठीक है? So the fibers they contract and they spindle pull. fiber contracts and pulls chromatids apart in anaphase towards the opposite ends of the nucleus. And in telophase, ends का नहीं, तुम poles का लफ्ज यूज करना. ठीक है? Generally they do not prefer the word ends. कहते हैं कि आप poles का word यूज करें. ठीक है? अच्छा, और इसके अंदर एक चीज और तुम यूज कर सकते हो, centromeres first. When they are going towards the opposite pole, centromere is first and then the chromatids. Okay. ये हो गया. So centromeres are pulled apart first. Chromatids being attached to them follow along with them to opposite poles of the ends of cells. And in telophase, the cell reforms. The nuclear envelope starts to reform. What else? So that two nucleus with similar genetic code in the end of mitosis, something like that. ठीक है, चलो यहाँ इन्होंने हमें 7 पॉइंट्स दिए, हमें 4 चाहिए थे. ठीक है? So we talk about attachment of spindle की आपने बात की by centromere. ठीक है? ठीक है? Then centromere divides या splits. ये चीज हमने बोली तुमने anaphase से देखा किया. हाँ, ठीक है? So it divides, then spindle fiber shorten, ये यूज करेंगे. The chromosomes are pulled, ये बिल्कुल आपने बात की थी, to the poles. ठीक है? What else? और different ends of the spindle है. ठीक है? वो nucleus ठीक है. अच्छा, they are accepting that nucleus को accept किया हुआ है. Centromere is leading. No मैम, मुझे सिर्फ एक ही मार्क मिला है. क्यों? तुमने बोला था मैंने पॉइंट्स मिस किए हैं. ये थर्ड वाला भी मैंने मिस किया. मैंने खुद ही बता दिया था. हाँ, और फोर्थ वाला भी मैंने मिस किया. हाँ, तुमने क्या पॉइंट बताया मुझे? Like मैम, attached to spindle, ये फर्स्ट वाला मैंने कहा है और उसके बाद फिफ्थ वाला कहा है. मैंने फिफ्थ को एक्सप्लेन कर दिया इन डेप्थ, like kind of. ठीक है, सही. अच्छा ठीक है, हाँ, लेकिन इसमें ठीक है, एक दफा गो थ्रू कर लो, उसको रीड कर लो. लेकिन लास्ट वाला यहाँ पे मेंशन नहीं है, जिसमें वो क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप रीफॉर्म हो रही है, वो यहाँ पे मेंशन. अच्छा, फिर मेरे 3 पॉइंट्स हो गए. ठीक है, आखिर में क्योंकि वो जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म होती है तो वो कॉइलिंग जो, क्योंकि वो प्रोफेज के टाइम पे ज्यादा कॉइल्ड होते हैं, देन दे बिकम अनकॉइलिंग. ठीक है, वो डीकंडेंस होना शुरू होता है. ठीक है, सो दैट वुड बी द लास्ट पॉइंट. ठीक है, तो एक दफा बेटा गो थ्रू जरूर कर लेना. ये है मार्किंग स्कीम आपके पास, जब दोबारा चैप्टर पढ़ोगे ना, फिर एक दफा दोबारा इसको गो थ्रू कर लेना. मैम, इस वाली सेवा एग्जाम्स के इस वाली में कितने क्वेश्चंस होंगे, लाइक कितने टॉपिकल्स हैं? किसके? इसके तो बेटा मेरे ख्याल से 4 वर्कशीट्स हैं उसमें. नहीं, लाइक क्वेश्चंस कितने होंगे? बात मुझे समझ नहीं आई तुम्हारी. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं पास्ट पेपर्स में जो हमें अटेम्प्ट करने हैं टॉपिकल्स की तैयारी के लिए? ईयरली के हिसाब से पूछ रहे हो कि कितने साल के करने हैं? या ईयरली के हिसाब से कितना पीछे जाए? मतलब मेरे ख्याल से तो अच्छा पढ़ के और 5 साल के भी कर लो ना लग के, तो भी बहुत मतलब आप कर सकते हैं अच्छा, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत होगा ना जी. 10 साल 20 साल कॉन्सेप्ट अच्छा लेके तो 5 साल में कर लो तो बहुत आराम से. बीच में आपको पता है सिलेबस भी चेंज होता रहा है बीच में, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो हो सकते हैं पहले आ रहे हैं वो नहीं आएंगे. कोई डिफरेंस इतनी नहीं होगी. क्योंकि बेसिकली देखो कॉन्सेप्ट होना चाहिए ना. वो तो एक ही, अब बायो में एक ही चीज उसी को पलट के वो डिफरेंट सिनेरियोज दे के आपसे पूछ रहे होते हैं. ओके मैम. ठीक है, चलो लेट्स ट्राई दिस वन. डन. So here they are saying 4 light micrographs of onion cells undergoing mitosis are shown. So let's see. एक A में इन्होंने हमें दिखाया है. वैसे क्या लग रहा है बेटा, A में ये क्या स्टेज होगी माइटोसिस की? मैम ये मिडिल है. क्या था? मेटाफेज. मेटाफेज है, ठीक है, because they are aligned here in the middle. What do you think this phase could be? E क्या लग रहा है? Just give me a minute, मैम. ये एनाफेज की मैम आपने क्या वो यूज किया, लाइक वर्ड क्या था एनाफेज के लिए? अवे. अपार्ट. अवे, हाँ. तो ये एनाफेज है. तो लुक एट बी देन. ओके, नहीं फिर सॉरी, फिर ये अजीब स्टेज है, बिकॉज़ इसमें ये फिर टीलोफेज है.
थिंक अबाउट इट, न्यूक्लियर ये दोबारा मैम से देखो रिफॉर्मेशन होना शुरू हो गई है, तो could it be telophase? yeah, so you telophase. Yeah, it could be. It is telophase. लेट्स लुक एट द, ठीक है, इसको कंफर्म भी कर लेंगे. व्हाट डू यू थिंक डी कुड बी बेटे? यहाँ पे कुछ भी क्लियर नजर नहीं आ रहा, सिर्फ जिस ये न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन पड़ा हुआ है बहुत सारा. तो व्हाट डू यू थिंक? ये इंटरफेस नहीं, इंटरफेस like है, इसके अंदर बिल्कुल बिफोर डिवीजन आई है, इंटरफेस है. एंड ये सी क्या लग क्लियर रहा है? कुछ भी नहीं है. सी देखो तुम. ये मैम इसमें लाइक काइंड ऑफ मुझे वो नजर आ रहा है, तो ये और ये सेपरेट भी नहीं हुआ, तो ये बेसिकली वो प्रोमिनेंट वाला पी फेस प्रोफेज. प्रोफेज है, गुड. तो ये इंटरफेस में ऐसा होता है और ये प्रोफेज है. तो वैसे तो इन्होंने एक्चुअली क्या किया बेटे, ए बी सी डी ई करके सारी फेजेस हम इसमें बता दिए, ठीक है. बट look at the question now. They are saying in this question, 1 mark is available for the quality of use and organization of scientific terms. ठीक है. So it means कि अगर ये question, this question is of 9 marks, मतलब total 10 marks है. तो for writing all is 9 और 1 mark इन्होंने रखा हुआ है quality of written communication. ठीक है. So 9 marks का question है और ये total 5 चीजें हैं. So they are saying you will gain credit if you refer to the labeled cells in the micrographs. ठीक है. But outline what happens to chromosomes during the mitotic cell cycle. So आपको पूरा mitotic cell cycle प्रोसेस बताओ. बिल्कुल. But देखो nowhere they have said कि आपको A B C को identify करना है. They have simply said in this question 1 mark is available and then outline what happens to chromosomes during the mitotic cell cycle. असल question तो ये है. अब मगर ये कह रहे you will gain credit if you refer to the labeled cells. तो So अब kind of या like 1 mark इंटरफेस में extra शुरू किया करो. हम. Yeah, okay. मतलब कि 1 mark इनको लेबल आंसर करके बता, आंसर में लेबल करके बताने का है कि अब मैं do आपको is marking like दिखाती. देखो they are saying कि if you are labeling and but if you are not giving the correct description तो वो labeling के भी नंबर नहीं देंगे. तो ये इन्होंने clearly बेटा आंसर की में लिखा हुआ है. Only award marking points. Marking point 1, 6, 9 and 14 are these बेटे. 1 है जहाँ पे जैसे इन्होंने आइडेंटिफाई किया हुआ है कि C is prophase, A is metaphase. तो they are saying ये मार्क सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में मिलेगा अगर बच्चे ने बाकी पॉइंट्स रेलेवेंट लिखे हैं. अगर बाकी सब चीजें गलत लिख दी, आइडेंटिफाई सही करते तो मार्क नहीं अवार्ड करेंगे उस केस में. ठीक है. तो अब ये कि अगर कुछ रिकॉल खुद कर सकते हो या आंसर की देख लो एक नजर, अगर तुम्हें अभी इतना डिटेल में पढ़ा हुआ नहीं है. ओके, नहीं एक दफा मार्किंग से गो थ्रू कर लेते हैं. हाँ ठीक है. तो अब जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रोफेस का इन्होंने, ठीक है, तो चलो हम सीक्वेंस में लिख देते हैं. हम लोग इंटरफेस से स्टार्ट कर लेते हैं ताकि सेम सेंस बन जाए. ठीक है. सो रीड थ्रू द पॉइंट विद फॉर इंटरफेस. Okay, except for description of early prophase, DNA replication, transcription, and award नहीं AVB का मतलब क्या है मैम? मतलब alternative valid point. Okay, these must be related to the behavior of chromosomes. Spindle made up of microtubules, chromatin becomes chromosomes. No, I don't get it. Like it's mixed up. देखो अब देखो क्वेश्चन ये 9 मार्क्स का है और 1 मार्क उन्होंने आपको दिया हुआ है उसके लिए और टोटल 5 चीज है हमारे पास. तो सोर्ट ऑफ उस तरह भी अगर तुम कर लो कि कम से कम 2-2 पॉइंट्स जरूर होने चाहिए हर चीज के लिए. हमारे पास 5 चीजें हैं. ठीक है. इंटरफेस. अच्छा, इसको याद करने का एक तरीका और भी है. पी मैट से आगे अगर आई कर दो ना, आई पी मैट, तो तुम्हें वो इंटरफेस वाला भी ध्यान में रहेगा कि वो पहले होती है. ठीक है. या पर्पल मैट करके याद कर लो. ठीक है. अब 5 चीजें हैं तो अगर जस्ट ये सोचो कि हाँ मैं 2-2 पॉइंट्स सबके लिख दूंगा तो सेट हो जाएगा उस तरह. तो अब इंटरफेस में, इंटरफेस इज द बेसिक पार्ट बेटा जहां पे डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है. ठीक है. सो मेन पॉइंट आप वहां पे डीएनए रेप्लिकेशन का बिल्कुल लिख सकते हैं. ठीक है. देन लेट्स थिंक अबाउट पॉइंट नंबर 2. और क्या क्या हो सकता है इंटरफेस के अंदर? इंटरफेस रिमेंबर इंटरफेस में और G1 भी थी, S फेज भी थी, G2 भी थी. या मैम. ठीक है. तो आप उस तरह की चीजें भी इसके अंदर भी लिख सकते हो कि व्हाट एल्स इज एक्चुअली बी हैपनिंग देयर. जो और एस फेज में तो वो होता है, ट्रांसक्रिप्शन होती है, फॉर्मेशन. हाँ नहीं एस फेज के अच्छा हाँ, और ये इट मेक्स सेंस कि लाइक प्रोटीन्स बन रही है नहीं तो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, एंजाइम्स बन रहे थे, प्रोटीन्स बन रहे थे, आरएनए बन रहा था. वो सारी चीजें ध्यान में ना तो और ठीक है. अच्छा, अब लेट्स कम टू प्रोफेज. एक सीक्वेंस बन जाए हमारा. ठीक है. अब प्रोफेज में देन वही कंडेंसेशन, थिकनिंग, वो सारी चीजें. या मैम. And then like become visible. अगर शॉर्टेड लिखे तो मेक श्योर उसके साथ थिकन कंप्लीट लिखोगे एंड करके तब फुल मार्क मिलेगा इसमें.
ठीक है, so आपका सेंटेंस है Alright, ma'am. क्रोमोसोम्स कंडेंस या क्रोमोसोम्स शॉर्टन एंड थिकन, ठीक है, then become Okay. visible, they consist of 2 chromatids, so 2 points यहाँ आ गए आपके, ठीक है. Let's come to metaphase then बेटे. तो again Chromosomes alive at the equator बिल्कुल and attached to spindle by centromere. हाँ, ये दोनों 2 points आ गए. ठीक है. अब आ जाओ इसमें एनाफेज. Centromere splits, chromatids separated and move to opposite poles. अच्छा मतलब ये एक सेंटेंस में भी मेरे 2 की पॉइंट्स आ जाएंगे आराम से. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. By contraction. Okay, done. ठीक है, और लास्ट है बेटा फिर आपका टीलोफेज. सो बेसिकली टीलोफेज में क्या हो रहा है? Chromosomes uncoil. फिर तुम इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का भी लिख सकते हो बेसिकली, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो रही है वहां पे, ठीक है. बट अगेन तो बस ये ध्यान में रखो कि 10 नंबर का सवाल है तो 2-2 पॉइंट्स में सबके आपके हो जाएंगे, तो डेफिनेटली बेटा एक मार्क गेन हो जाएगा, ठीक है. सो दिस वाज ऑफ 10 मार्क्स टोटल. ओके, लेट्स ट्राई दिस वन. So this diagram shows drawings of nuclei A to D from 2 different plant species seen in the prophase stage of mitosis. So prophase का मतलब है they are actually more prominent now. So 4 हैं और let's go to the question now. On diagram A, one of the pair of homologous chromosomes. अच्छा बेटा homologous chromosomes का क्या मतलब होता है? मैम homologous series बिल्कुल सेम होते हैं. बिल्कुल, homologous का Similar. मतलब है exactly matching. ठीक है, मतलब जब हम होमोलोगस की बात करते हैं ना बेटे, तो होमोलोगस को इस तरह ध्यान में रखना कि लाइक उनका स्ट्रक्चर, उनका साइज, ठीक है, इट विल बी सेम, ठीक है, तब हम होमोलोगस उसे बोलते हैं, ठीक है. सिर्फ चेंज क्या हो सकता है बेटा, Okay, एलियंस ma'am. डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि वो डिफरेंट वर्जन ऑफ जीन्स हो सकते हैं, बट क्योंकि इसीलिए जब हम कैरियोग्राम बनाते हैं ना तो होमोलोगस पेयर जो एग्जैक्टली सेम जो होते हैं ना उनको एक साथ ही रखा जाता है, ठीक है. सो दैट इज व्हाट होमोलोगस इज. So अब यहाँ पे they are showing you a pair of homologous chromosome. It has been shaded. Shade the other member of the pair. So let's look at this. अब एक और तुम्हें clear भी हो जाएगा. Diagram A में उसने हमें बोला है. So homologous में बेटा structure देखो कि exactly same तुम्हें कौन सा लग रहा है इसके साथ. Black वाले के साथ. मैम जरा ब्लैक वाले के साथ जरा एक मिनट रुकिए. Exactly Black. matching. ये B के अंदर जो बिल्कुल लेफ्ट पे है. ये वाला? ये भी पॉसिबल है. डायग्राम ए के अंदर देखो, ठीक है. मेक श्योर क्या करना है आपने, इसके देखो, इसकी देखो सेंट्रोमेयर इधर है और सेंट्रोमेयर के ऊपर जो आर्म्स है दे आर शॉर्ट इन साइज, ठीक है, और बाकी कोई भी ऐसा नहीं है. देखो इसके भी अगर मैं आर्म्स देखूं दे आर लॉन्गर, ये तो वैसी साइज में छोटा है, सिर्फ यही है तो वजह से मैच कर रहा है. यहाँ सेंट्रोमेयर के ऊपर देखो दीज आर्म्स आर शॉर्टर इन लेंथ और ये देखो ये लॉन्ग है. तो होमोलोगस का मतलब ही बेटा मैचिंग, सेम इन स्ट्रक्चर, इसीलिए हम इनको साथ पेयर करते हैं. तो अब इसको आपको शेड करना पड़ेगा, ठीक है. तो फर्स्ट डायग्राम में उन्होंने खाली बोला कि शेड कर दें, ठीक है. So this is what homologous is. All right, ma'am. Okay. Then they're saying name the stage in mitosis that immediately follows prophase. तो वही अगर तुम्हें PMAT याद है, Metaphase. नेम करना है हमें. Metaphase, ठीक है. Then they're saying describe the behavior of chromosomes in this stage. So already ऊपर हम लोग metaphase के बारे में क्वेश्चन कर चुके हैं, तो I think we should. Yeah. Already हम कर चुके हैं. No, we don't need the marking scheme. So ठीक है, देखना है अगर तो let's एक दफा देख लेते हैं. मैम वही होगा ना कि they align in the middle और ये spindle is attached to the centromere. 2 points. ठीक है, और हाँ बिल्कुल वही, ठीक है. इनफैक्ट वो प्रीवियस क्वेश्चन के कुछ पॉइंट्स मेरे ख्याल से मैंने स्क्रॉल नहीं नीचे किया था, तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी उन्होंने दिए हुए और ये सारा. Oh, okay. ये हम कर चुके थे डिस्कस. चलो नेक्स्ट है बेटे मेटाफेज के, आपने यहाँ पे मुझे पॉइंट्स बता दिए, ठीक है. सो फर्स्ट तो मेटाफेज था. अच्छा, हियर दे आर सेइंग रिजेक्ट इफ द पर्सन इज रेफरिंग टू मेटाफेज 1 और 2. इसका क्या रीजन हो सकता है? ये तो A2 का पार्ट है. मेयोसिस का A2 का पार्ट है. मेयोसिस है ना, exactly. तो इस वजह से अभी माइटोसिस स्पेसिफाई किया उन्होंने, ठीक है. ओके, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन देन. अब दे आर सेइंग द डिप्लॉयड नंबर फॉर क्रोकस इज 6. डिप्लॉयड होता है बेटे 2n and the diploid number for broad bean is 12. ठीक है, diploid means बेटे 2n, और अब दोनों का diploid हमें दिया हुआ है, एक का 6 दिया और एक का 12 दिया है. Then they are saying state which of the drawings A, B, C or D shown in the diagram represents the following: haploid cell of broad bean.
तो ब्रॉड बीन इन्होंने हमें बोला है इज 6 और 6 इज डिप्लॉयड। मैं 3 हूँ इसके। तो हैप्लॉइड का क्या मतलब होगा? Haploid. तो So अब which do you think will it can be you show me like the 4 diagrams? ये हमारे पास देखो ये Man, डायग्राम, obviously D. ये देखो मैं छोटा कर देती हूँ, दिस इज ए, दिस इज बी, D है। सी और डी, ठीक है। सो यू आर सेइंग डी, ठीक है। लेट मी राइट इट देयर, फिर हम मार्किंग किसे टैली कर लेंगे। सो इट इज डी। अच्छा, देन दे आर सेइंग रूट टिप ऑफ सेल ऑफ क्रोकस, ठीक है। बट रिमेंबर क्वेश्चन में शुरू में उसने लिख दिया था कि डिप्लॉयड नंबर इज 6, ठीक है। एंड दे आर आस्किंग अस टू Okay. टेबल द डायग्राम, रूट टिप ऑफ क्रोकस कौन सी होगी फिर? ऊपर तो उन्होंने हैप्लॉइड की बात करी। Yeah, diploid होगी। हाँ, तो डिप्लॉयड अगर है तो Because ऑलरेडी it's the क्वेश्चन में normal given, cell. It's not हाँ, like ये वो वाला germinate नहीं कौन सा था? Those are special cells that have इसी like डायग्राम में haploid. आपको बताना है, इसी डायग्राम में आपको बताना है। जिसके अंदर 6 हो मैम 1 2 3 yeah it's C. अच्छा, तो यू आर सेइंग इट्स सी, तो But ठीक है, wait, why पहले भी can't पहले, it be A? Wait, हाँ मैम अगर सी A है क्यों नहीं हो सकता? हम्म, A भी तो हो सकता है, उसमें भी तो 6 है। हाँ तो यही आपसे कह रही हूँ ना, दोबारा सवाल पढ़ते हैं, लेट्स सी। इसको जूम कर दूँ। They are saying the diploid number is 6 for crocus and state which of the drawings A, B, C or D shown in diagram represents the following. So it's root tip of crocus. And let's look Okay. at now let's look at the diagram. So let's think about के 1 2 3 4 5 6 इसमें भी और 6 उसमें भी है। So why are we actually, अब हम A को क्यों select करें, फिर we have to think of a reason. डिप्लॉयड की उसने बात की, तो थिंक अबाउट, बेटा हमने क्वेश्चन में शुरू में बात की थी होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, तो सी में डज इट लुक लाइक द केस बेटे, पेयरिंग हो सकती है किसी की? मैम काइंड ऑफ नहीं हो सकती। देखो सभी का पॉसिबली नहीं है। ये इसका अगर सबके डिफरेंट है। मेरे इधर है, इसका इधर है, इसका इधर, तो हम पेयरिंग कर ही नहीं सकते। इवन इफ यू लुक एट दिस, तो नहीं। प्रॉपर वो बन ही नहीं रहा, तो यहाँ पे बट इट मेक सेंस, ठीक है। या मैम इट मेक्स सेंस। लुक एट ए, क्योंकि एक क्वेश्चन शुरू से ही हमें कह रहा था इट शोज प्लांट स्पीसीज इन द प्रोफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस, ठीक है। सो प्रोफेज के टाइम पे ऑलरेडी डुप्लीकेशन हो चुकी होती है, ठीक है, और होमोलोगस भी यहाँ पे नहीं है। तो लेट्स, ठीक है, अब हम और देखते हैं इसका सवाल। तो इट्स अच्छा, देन हेयर भी लाइक हमने डी बोला था, बट आई थिंक आंसर की में सी था। तो लेट्स गो बैक एंड लुक एट दिस, अब दोबारा चेक करो मैम बेटा। ये भी गलत। हाँ तो लेट्स चेक ना, कोई बात नहीं। सी, अब ठीक है, आई एम गोइंग टू द क्वेश्चन अगेन, लेट्स सी क्वेश्चन क्या था। इट सेड द डिप्लॉयड नंबर, ब्रॉड बीन का नंबर था बेटा 12 था फॉर अ डिप्लॉयड, ठीक है। एंड वी हैव टू फाइंड द हैप्लॉइड सेल ऑफ ब्रॉड बीन। हैप्लॉइड का मतलब है वो नंबर हाफ हो गया है। सो नाउ यू, अब डी और सी को चेक करो, फिर नाउ यू थिंक ऑफ योर आंसर। डिप्लॉयड का मतलब है हमारे पास वहां पे, आई गेट तो आप समझ आ रहे हैं कि वाई देयर एक्चुअली, इनका यहाँ पे कोई पेयर क्यों नहीं है, ठीक है, ये अकेले अकेले ही है, मैम आई गेट इट। ठीक है। समझ आई या नहीं आई? हेलो। जी जी, मुझे आ रही है आवाज बेटा आपकी। जी, कैन यू हियर मी? क्या हुआ? Yeah, I'm getting you. I get it. Like what 6 3 नहीं 6 देखो हमारे पास 12 थे, दे सेड कि डिप्लॉयड में वी हैव 12 एंड नाउ दे आर आस्किंग यू टू फाइंड द हैप्लॉयड नंबर, वो 12 थे, ठीक है। तो हैप्लॉयड का मतलब वो हाफ हो गए, वो 6 हो गए, ठीक है। उसकी ये वाली स्टेज है, उसकी डिप्लॉयड स्टेज ये है, फिर लुक एट दिस वन बेटे।
Okay, let's look at the next one then. Okay, question 6. So here they have given us photomicrographs showing stages of mitotic cell cycle occurring in the root tip of onion. And they are saying they're all of the same magnification. Stages A to C are in the correct order. Okay, so अच्छा, let's see. What do you think बेटा stage A क्या लग रहा है तुम्हें क्या होगी? Interface. प्रोफेज लग रही है. अच्छा, और B क्या मैम लग रहा है? इंटरफेस लग रहा है. इंटरफेस लग रहा है. ठीक है, because they're saying is that they're in the correct sequence. ये इंटरफेस है क्योंकि इसमें ऐसे Yeah. प्रोमिनेंट क्रोमोसोम्स नजर नहीं आ रहे. What about B? Prophase and then metaphase. ठीक है, चलो इसको और enlarge कर लेते हैं. तो हाँ, the B में prominent हो गया it's prophase, and then we have metaphase. Okay. Then they're saying the rest of them are not in correct order. So even if you look at them, beta K में, this is something that should be actually happening in the last. Cytokinesis. हाँ. और if you look at this one, ये क्या लग रहा है तुम्हें? ये मैम kind of वो है. ये अवे से anaphase है. एनाफेज है. Apart. अच्छा, ओके, तो L तो चलो एनाफेज हो गया. अच्छा, look at M also. फिर M और K में जरा डिसाइड करो. What do you think बेटे? M में they Okay, are ma'am. जरा smaller. M is gonna be cytokinesis, and K is M में gonna देखो, be telophase. थिंक अबाउट इट बेटा. अगर हम टीलोफेज की बात करें तो अभी इसमें इतनी क्लियरली वो सेपरेट नहीं हुए हैं. बट यू इफ यू लाइक टेली इट फ्रॉम K, तो K में एक प्रॉपर एक सॉर्ट ऑफ सेल वॉल हमें नजर आ रही है बाहर. तो नाउ थिंक के टीलोफेज कौन सा लग रहा है, साइटोकिनेसिस कौन सा होना चाहिए? टीलोफेज में वो चीजें स्टार्ट होती हैं आहिस्ता आहिस्ता. Keeping that in mind, so yeah, so okay, K is cytokinesis then. के ये होना चाहिए और M should be telophase. Let's see what else is there. और ये क्या लग रहा है बेटे? N. यहाँ पे भी एक ये क्या होगा? ये क्या है? ये भी वैसे दूसरे उसमें तो चले गए हैं. यहाँ बीच में एक क्लीवेज फरोत हमें नजर आ रही है. ठीक है, और एनाफेज भी कंप्लीट हो गई है इसमें. ठीक है, मगर इसमें स्पिंडल फाइबर्स नहीं है. ठीक है, तो लेट्स सी के बेसिकली हमें और एक दफा कंफर्म करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे तो वी कैन सी कंप्लीटली दिस. ठीक है, एक बार मैं इसको मार्किंग की भी एक तरह देख लें नजर ताकि क्लैरिफिकेशन हो जाए. सो ए वाज इंटरफेस, वो ठीक हमने अच्छा दिस वाज इट ना. L N M K. They're asking us to line up. L कह रहे हैं पहले L आएगा. चलो मैं इसको यहाँ पे 1 लिख देती हूँ. फिर they are saying उसके बाद L के बाद N है. सो एनाफेज यहाँ पे शुरू हुआ है और यहाँ पे वो खत्म हो गया है. ठीक है, एनाफेज यहाँ पे हो रहा था और यहाँ पे eventually they have reached it. ठीक है, उन्होंने समझ लिया कि सीक्वेंस का हमें अरेंज करना है कि क्या क्या चीज पहले हो रही है. सो शुरू के स्टेजेस के बाद दिस L होगा, फिर N है. यहाँ एनाफेज कंप्लीट हो गया बेटे. उसके बाद ये आपका ये टीलोफेज है जहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म हो रही होगी और फाइनली बेटा साइटोकिनेसिस होगा जब प्रोमिनेंटली वी कैन सी दीस आर सेपरेट सेल्स देयर. ठीक है, तो वो द क्वेश्चन वाज line stages अपनी sequence मतलब वो हमने कर लिया था. एंड देन दिस इज पुट स्टेजेस K to N इन करेक्ट सीक्वेंस. तो इसे सीक्वेंसिंग करनी थी. सो वो ये कि अगर हर चीज सही होगी ओनली देन 1 मार्क विल बी अवॉर्डेड. ओके, अच्छा, then they say explain how the behavior of chromosome and spindle during stage L. So stage L was, I think it was anaphase. Stage L anaphase है. Yeah, anaphase. So they are saying explain, sorry, the behavior of chromosome and spindle. दोनों का बताना है आपको behavior. During this phase, ensures that the daughter cells will be genetically identical. 3 marks का भी देंगे. Like the separation is of two identical chromatids both containing the same molecule of DNA, the same set of genes. So the chromosomes that end up in two daughter cells contain the same set of DNA or same sets of genes.
मगर अभी सिर्फ एनाफेज को बताना है बेसिकली बेटा आपको। क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि हाउ द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एंड स्पिंडल, इन चीजों का जो बिहेवियर है, हाउ डज इट इंश्योर that the two daughter cells will be genetically identical? So what would be don't get it, happening man. at this? chromosomes कैसे behave कर रहे होंगे, स्पिंडल कैसे behave कर रहा होगा, ये चीज इंश्योर करने के लिए कि जेनेटिक मटेरियल आइडेंटिकल है। तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि क्रोमोसोम्स या कुछ सेंट्रोमियर के बारे में ध्यान में सोचो, स्पिंडल की कॉन्ट्रैक्शन के बारे में सोचो, कुछ अगर वो चीज जहन में आ रही है बेटे। एनाफेज में सेंट्रोमियर ही डिवाइड हो रहा होता है ना बेसिकली। हाँ, सेंटर में 20 में से डिवाइड हो रहा होता है और 2 आर्म्स एंड लेग्स और कुछ सेपरेट कर होता है। तो अब आपको बेसिकली क्योंकि क्वेश्चन किया था क्रोमोसोम और तो स्पिंडल का बिहेवियर, ठीक है। तो अब ये गो या थ्रू कर लो बेटा सब, यहाँ पे इन्होंने दिए हैं आपको पॉइंट्स। okay, centromere attached to the spindle fiber except spindle. Oh no, wait, idea that centromere has divided. Okay, centromere attached to spindle fiber, shortening contraction of spindle fibers, splitting centromeres. Ma'am, like, makes no sense. Yahi to baat, like, this is a weird question. नहीं बेटा अजीब सा सिंपल, है। देखो हाउ द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम स्पिंडल, मतलब ये किस तरह एक्ट कर, इनके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रही होती हैं ड्यूरिंग एनाफेज व्हिच इंश्योर्स दिस। अब द थिंग इज बेटा, देखो इफ यू लुक एट एनाफेज, एनाफेज में द थिंग इज बेटा स्पिंडल फाइबर्स की कॉन्ट्रैक्शन इंश्योर कराती है कि आपका जो एक एक जो क्रोमेटिड है ना बेटा, इट मूव्स करेक्टली। कभी कभी ये भी होता है अगर ये सेंट्रोमेर सही से ब्रेक नहीं हुआ ना, तो हो सकता है कि काफी सारे क्रोमेटिड्स एक साइड पे आ जाए, थोड़ा दूसरी साइड पे चले जाए, क्योंकि बेसिक तो ब्रेकेज होती है ना इसके बीच में, जो सेपरेशन हो रही होती है। Okay, तो अगर स्पिंडल फाइबर सही से yeah, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो दिस कैन आल्सो बी एन एब्नॉर्मेलिटी। तो दिस इज व्हाट योर स्पिंडल फाइबर इज एक्चुअली इंश्योरिंग। all right. ठीक है, अब जरा रिलेट करो उसको। अब ये मैं मार्किंग की दोबारा खोल लूं, अब इसको पढ़ो। Idea that centromere has divided, centromeres attached to spindle fiber. Okay, so basically पूछ ये रहा है कि like उनका फंक्शन क्या है, उनके साथ होता क्या है। बिल्कुल। Okay, ma'am. ठीक है, तो सिस्टर को अगर खाली क्रोमेटिड्स मत यूज करना, मेक श्योर सिस्टर क्रोमेटिड यूज कर रहे हो, दे मूव टू द ऑपोजिट पोल्स। अब मैक्सिमम 3 मार्क्स गेन करने हैं आपको। तो कि किस तरह शुरू होता है और किस तरह एंड करता है, तो एक प्रोसेस आपको फिर वहां पे लिखना है। क्लियर हो All बेटा? right, ma'am. ठीक है, चलो लेट्स ट्राई द नेक्स्ट वन देन। अच्छा, क्वेश्चन 7। This is a photomicrograph of a plant root cell near the growing tip. Some of the cells are undergoing mitosis. Okay, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं और जी बेटे, so ऐसा लग रहा है कि कुछ cells हैं, they are undergoing mitosis. If you look at the diagram बेटे, Yeah, ma'am. नजर आ रहे हैं, A, like B, C, different D उन्होंने stages. आपको दिखा दिया है, ठीक है। So they are saying state one feature visible in this figure which indicates that the section is taken from a plant tissue and not an animal tissue. So और से देखो, और 1 mark का है बेटे। What makes you think this has Ma'am, been taken from a plant cell? Plant tissue से लिया गया है। cell wall Cell wall, cell wall बहुत and clear इसमें indication है, ठीक है। yeah, तो box-shaped cells, so with cell wall. और कोई चीज ऐसी है जो नजर आ रही है गौर से? वैसे मुझे तो ज्यादातर सेल वॉल का ही। Vacuole. You can see that vacuole, ठीक है, good. Anything else? I think these I are can't the see chloroplast. okay, ठीक है, let's look at the marking की, क्योंकि definitely more than one options है वहाँ पे, but वो खाली एक ही पूछ रहे हैं। ठीक है, तो सेल वॉल, वैक्यूल्स आपने बोला, ठीक है, और यहाँ पे रेगुलर शेप की बात की जा सकती है, ठीक है। देन अगेन बेटा सेंट्रियोल्स, क्योंकि सेंट्रियोल्स तो प्लांट सेल में होते ही नहीं है, तो Okay. ठीक है। सो 1 मार्क चाहिए था हमें, ठीक है। सो दे हैव गिवन अस मेनी पॉइंट्स देयर। ओके, 1 फीचर था खाली। अच्छा, देन दे आर सेइंग स्टेट लेटर A to D of the cell which is in prophase. So let's look at the diagram, or which one do you think it could be in prophase? A, B, C, Ma'am, D के अंदर से। it's gonna be A. ओके, थिंक देख लो जरा गौर से। तो मैं प्रोमिनेंट क्रोमोसोम्स नजर आ रहे हैं के अंदर? नहीं. Okay, so D.
अच्छा, you are saying D. ठीक है, let's see that. अच्छा, अब यहाँ पे they are saying B. अब look again. Like, man, B is kind of like B makes no sense because उसमें oh okay, I get my mistake. NF में जा चुके होते हैं. Okay, I get it. तो B ठीक है, और it's B prominent हो रहे हैं ना, यहाँ पे ज्यादा prominent हो रहे हैं. Yeah. और उसके बाद नेक्स्ट वो हमसे कौन सा लेबल करने को कह रहे हैं? एनाफेज. तो एनाफेज तो बहुत क्लियर है बेटा, वो तो नजर आ रहा है सी. Yeah, it's C. अच्छा, अब इसको Anaphase हम क्यों apart. प्रोफेज भी बोल रहे हैं कि लेट्स से अगर तुम डी से कंफ्यूज हो रहे हो तो रीजन थिंक अबाउट बेटा, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीजेनरेट हो रही है. सो यहाँ पे देखो कितनी क्लियर हमारे पास आउटलाइन है, और प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इफ यू लुक एट इट बेटा, इसके बीच में तुम्हें गैप नजर आ रहा है. दिस इज नॉट द केस हियर. Yeah. ठीक है. ओके, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन देन. Yeah. Describe two events occurring in the cell B. Cell B बेटा was in prophase. तो prophase के कोई आपको Okay. दो चीजें जो ध्यान में हो. You can look at the diagram also. Condensing of the chromatin to form thick and short chromosomes, and which makes them visible. और इस prophase में और क्या होता है इसके अलावा? Nuclear envelope starts to disappear. हाँ, ठीक है. और तो ठीक है, आंसर की भी देख लेते हैं. So chromosomes या chromatins they condense, they coil up, they thicken. ठीक है, आपने बिल्कुल विजिबल शॉर्टन की बात की. स्पिंडल फॉर्मेशन में बेटा स्टार्ट हो जाती है. ठीक है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीजेनरेट्स एंड न्यूक्लियोलस आल्सो डिसअपीयर्स. न्यूक्लियोलस कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाता है. ठीक है, बट मैक्सिमम 2 हमें चाहिए थे, तो इट्स गुड देन. ओके, लेट्स ट्राई द नेक्स्ट वन देन. Describe the role of mitosis in growing plant root tip. तो बेसिकली माइटोसिस कहाँ पे काम क्या होगा बेटे? 2 मार्क्स का है. तो इट्स अ ग्रोइंग प्लांट रूट टिप. So mitosis के function ध्यान में लाओ. हाँ, exactly वही replacing dead cells या फिर growth. एक तो growth है बिल्कुल, ठीक है. Producing more cells. Repairment of cells. हाँ, अच्छा हाँ, सेल्स के लिए कभी भी रिपेयर का लफ्ज नहीं यूज करना, रिपेयर ऑफ टिश्यूज का यूज करना. ठीक है, सेल्स रिप्लेस होते हैं तो यू सेड रिप्लेसमेंट. ठीक है. सो रिपेयर या रिप्लेसमेंट अब टिश्यू की बात करते हैं, बट सेल्स के लिए हम कभी रिपेयर यूज नहीं करते बेटे. रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स होता है. मतलब डिस्पोजेबल है, सेल्स खत्म हमने फेंक दिया, लाइक दे कांट बी रिपेयर्ड. ओके, तो 2 पॉइंट्स आपके ठीक है, वैलिड 2 पॉइंट्स आर गेटिंग इट हियर. और ग्रोथ की भी आपने कर ली. ग्रोथ के अलावा डिफरेंशिएशन भी हो सकती है. बट ठीक है, 2 वैलिड पॉइंट्स. डिफरेंशिएशन सेल्स डिफरेंशिएट भी तो करते हैं ना, स्पेशलाइज्ड सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं माइटोसिस के अंदर. ओके, या दैट वाज अ पार्ट. ठीक है. ठीक है. एंड चलो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन. Mutations can sometimes occur in cells which are rapidly dividing. Outline how a mutation can cause an altered polypeptide to be produced. तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर एंजाइम वाले चैप्टर के थोड़ा सा याद है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में प्रोटीन का याद हो तुम्हें, 2 मार्क्स का है ये बेटे. Outline how a mutation can cause an alternate polypeptide to be produced. Well, mutation can occur sometimes in so ma'am, I can like my answer is gonna be okay. Wait, ma'am. Mutation occurs in cells. क्या हो सकता है? Think about जो नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस होता है. For example, ATP. Yeah, nitrogen is. Something happens here. अच्छा, chapter 6 का है ना ये part. चैप्टर 6 में भी है, लेकिन basically थोड़ा सा प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर भी अगर तुम्हें याद हो कि डीएनए बेटा एक्चुअली कोड्स फॉर के नाइट्रोजनस बेसिस specific amino acid has to be formed. फिर which amino acid will actually be linked up to form protein. So वहां से अगर रिलेट करो. Exactly. ठीक है. So DNA contains the structure of like protein combined with histones, and in repeated replication, somewhat mutation might occur which might cause the nucleotides to be changed or to be altered, and which will result in a completely different structure. And this might result in this might result in like तो चेंज इन द डीएनए या बेस सीक्वेंस. ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चीज म्यूटेशन
सबसे पहले बेटे डीएनए जब रेप्लिकेट हो रहा है वहां पे भी म्यूटेशन हो सकती हैं, तो वहीं पे अगर सीक्वेंस चेंज हो रहा है बेटे इट विल कोड फॉर अ डिफरेंट अमीनो एसिड। अच्छा यहाँ पे Alright. ठीक है इन्होंने नाम भी लिख दिया कि सब्सटीट्यूशन डिलीशन, मतलब वही जो अगर सीक्वेंस है बेटा उसका वो सब्सटीट्यूट हो जाए डिलीट हो जाए, दे हैव गिवन नेम्स हियर। ठीक है, तो और अदरवाइज आप ये लिख सकते हो कि अ चेंज इन दिस सीक्वेंस कैन लीड टू चेंज इन अमीनो एसिड सीक्वेंस which can lead to like change in the primary structure of the protein. So definitely बेटा वो प्रोटीन जिस फंक्शन के लिए बनाई गई है वो फंक्शन तो पूरा होगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज एन एंजाइम, Alright, ma'am. तो अगर एंजाइम है बेटा सो वी नो के एंजाइम की एक एक्टिव साइट होती है, so if there is any damage या any change in the primary structure, तो एंजाइम बेटा टर्शियरी स्ट्रक्चर है, वो एक्टिव साइट ही अगर सही नहीं है तो सबस्ट्रेट will not be able to bind there. So एंजाइम का Yeah, जो ma'am. फंक्शन है कैटलाइज करना वो सब होगा ही नहीं। ठीक है, so 2 marks में ठीक है then. Okay, let's look at this. So they're saying the inner lining of arteries and veins are composed of a layer of epithelial cells supported by a layer of elastic and connective tissue. Epithelial cells are capable of cell division by mitosis. So state the role of mitosis in cell division of epithelial cells. So epithelial cells are अगेन वैसे वही ऊपर हमने प्लांट सेल्स के बारे में रूट सेल्स के बारे में डिस्कस किया था, यहाँ उन्होंने एपिथेलियल सेल्स की एग्जांपल दी है। Ma'am, state the role of mitosis. ये वही है ना, kind of कि आपने बताया था कि like replacing the damaged or worn out cells, and also second part ये था कि specialization भी लिख सकते हैं, third ये कि new cells forming for any specific task. काफी सारे बहुत जल्दी बोर्न आउट होते रहते हैं। ठीक है, तो अगेन वही बेसिकली मेक श्योर करना बेटे टिश्यू रिपेयर सेल रिपेयर कभी यूज नहीं करना, वो आंसर रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, Okay, ma'am. आइडिया ऑफ वही रिप्लेसिंग डेड सेल्स, सो 2 मार्क्स में। ठीक है, सो एक दफा गो थ्रू कर लो इसको। ठीक है, तो आई थिंक काफी पहले Replacement cells. रिप्लेसमेंट Yeah. Protection आवाज done. Meiosis. मैम मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? हाँ कट जाती है बीच में। और इसी का सेकंड पार्ट बेटा एक्सप्लेन बाय द एपिथेलियल सेल्स अंडरगो माइटोसिस नॉट मेयोसिस। सो एनी आइडिया बेटे? मैम इसलिए क्योंकि meiosis is division into haploid cells बिल्कुल। देन ठीक है, and mitosis is not. बिल्कुल Yeah, and second thing gametes के अंदर होता है meiosis. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो सही है। 2 पॉइंट्स के लिए आपका आंसर्स आ जाएंगे इसके। ठीक है, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ a cell in late प्रोफेज। ठीक है, सो दे आर प्रोमिनेंट मगर अभी लाइन अप नहीं हुए हैं। ठीक है, इट्स लेट प्रोफेज एंड Okay. स्पिंडल फॉर्मेशन हो गई है। नाउ दे आर सेइंग complete this figure to show the same cell in anaphase stage of mitosis. So already हम ऊपर एक बना चुके हैं, but अब now you tell me बेटे कि अगर तुम इसी को तुम anaphase में बनाओगे तो how would you do it? Apart nuclear envelope होगी नहीं, और ये like ये जो like टूट चुके होंगे, हाँ ये भी क्योंकि ये फिलहाल प्रोफेज है, 2 बने हुए मेटाफेज स्किप कर गए हम लोग, अब हम एनाफेज में। या और इसके अलावा ये like opposite ends पे जा रहे होंगे, वो the centromere leading towards it. तो ये होंगे कितने? अभी ये 4 है, तो जब ये यहाँ पे जा रहे होंगे तो इसके एक नंबरिंग के हिसाब से 4 बता left or 4 upwards or 4 down. ठीक है, और क्रोमेटिड जो सेंट्रोमेयर है इट विल बी लाइक सेंट्रोमेयर फर्स्ट एंड देन द वी शेप उसके जो भी क्रोमेटिड्स होंगे। Yeah, ma'am. ठीक है, ओके देन ठीक है, तो 2 मार्क्स में दिस इज व्हाट दे विल लुकिंग फॉर। और अगेन बेटा फिर वही देख लेना कि इसकी लेंथ वगैरह जो आर्म्स की है कि मेक श्योर बेटा दे आर आइडेंटिकल। जैसे फॉर एग्जांपल इसको ड्रॉ करोगे तो Alright, मेक ma'am. श्योर के वो सही हो उसका। ओके, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन देन। Then they're saying mitosis is an important मैम काफी नहीं है, 8 सवाल कर लिए। हाँ काफी तो हो गए, बट कोशिश ये करना बेटा कि इसको एक नजर देख के ना कंप्लीट कर लेना। एक लास्ट ही मैं आपको थोड़ा सा सिर्फ एक इसमें एक क्वेश्चन ये करवाना चाह रही थी आपको, दिस वन बेटे। Yeah, ma'am. जस्ट टू दे आर सेइंग ऊपर उन्होंने हमें एक डायग्राम दिखाई है कि बायोलॉजिस्ट बेटे टुक सम सैंपल्स, उसने अराउंड 200 लिए थे सेल्स। ठीक है, दिस इज व्हाट दे आर शोइंग आई थिंक, लेट मी। ठीक है, तो उसने परसेंटेज निकाली कि 90% ऑफ दो सेल्स जो उसने लिए बेटे दे वर इन इंटरफेस
स्टेज ए में 3 of them were there. तो स्टेज ए जो है बेटा, what do you think this stage could be? This is prophase. Prophase. और स्टेज बी क्या लग रही है? Anaphase, apart. ठीक है, सही है. So explain this thing why the biologist chose to examine 200 cells. तो कोई 200 cells लिए और उसमें से इतने % इंटरफेज में थे, इतने % प्रोफेज में और 1% उसमें है. तो कैन यू थिंक ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन उसने ये एक सर्टेन नंबर ऑफ सेल्स क्यों लिया? Yeah, मैम, अगर like कम नंबर ऑफ सेल्स लेते तो मोस्टली जो हैं सारे इंटरफेज में होते हैं. अगर वो सिर्फ like 10 लेता तो 90% of 10 like सारे जो हैं उसमें होते हैं, और 0.3 is not even accountable, like बहुत कम नंबर है. Good. So because this is what she wanted to ensure. ठीक है, so that's good. Yeah. अच्छा, नेक्स्ट है इसके बाद तो यहाँ पे बेसिकली फिर आप इसकी टर्म यूज करोगे, she wanted to ensure this कि cells are there in different stages of mitosis. अच्छा, हम लोगों ने इनको तो नेम कर लिया था स्टेजेस को, एविडेंस भी आपने दे दिया था. दिस वन बेटे, इन दिस टिश्यू वन कंप्लीट सेल साइकिल टुक 20 hours. एक सेल साइकिल, ठीक है, उसको 20 hours लगे. यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल, कैलकुलेट द मीन टाइम फॉर दीज सेल्स टू कंप्लीट माइटोसिस. So again बेटा think about it कि शुरू में हमने बात की थी कि around 80%. Yeah, मैम, याद है. 80% is in interface, and then like 10% is in mitosis, and 10 is like in. तो कैसे करोगे? अब so मैं like ratios बना एक सेल साइकिल को 20 hours लगा. 8-1-1 मैं ratios बना के solve ये कर हरीश ने लूँगा. माइटोसिस की बात की हुई है, तो अराउंड 80 to 90% आपका हो जाता है उसमें इंटरफेस में, तो 20 hours हैं. तो अगर हम ये एज्यूम करें कि माइटोसिस 2 hours 10%, 2 hours, ठीक है, तो आप यहाँ वर्किंग शो कर दोगे 2 marks से, ठीक है, और 2 hours लिखोगे 120 minutes. सो आई थिंक इट्स देयर कहीं कि मैंने मिस ना कर दिया हो. तो हाँ, ये ठीक है. और बाकी पे ठीक है बेटा, वर्क ना एक दफा ट्राई कर लेना क्वेश्चंस को. मैम, इस चैप्टर की कितनी वर्कशीट्स हैं? सिर्फ एक ही है ना, लाइक या और भी हैं? ये चैप्टर 5 की है ना, इसकी वो एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं और मार्किंग स्कीम है. लाइक एक आपको इसके कंपाइल्ड अलावा सेट है पूरा, एक ही के अंदर इसके अलावा काफी सारे क्वेश्चंस हैं. अच्छा, बस यही है ना, लाइक वन वर्कशीट है. फिर नेक्स्ट क्लास में बेटा हम फिर Okay, चैप्टर ma'am. 7 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह. ठीक है. All right, ma'am. Thank you. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज.